We will now study quantum wave mechanical model of an atom. First of all, quantum word is derived from the word quanta. Quanta means पैकेट. पैकेट का मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर ये मार्कर देखें, तो सपोज मैं दुकान में गया, तो आई वॉन्ट 1 मार्कर और 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स. ऐसा मार्कर मिलेगा कि नहीं हम लोग को? डू वी हैव 1.5 मार्कर? 1.5 एक और आधा मार्कर मिलेगा क्या? या सिर्फ 0.5 मार्कर, 0.25 मार्कर, 0.1 मार्कर मिलेगा क्या? नहीं. तो नंबर ऑफ मार्कर्स इज व्हाट? आइदर 1 और 2 और 3. तो ऐसा. तो नंबर ऑफ मार्कर्स इज क्वांटाइज्ड. वी कैन से नंबर ऑफ मार्कर्स इज क्वांटाइज्ड. यू कैन हैव आइदर 1 मार्कर और 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स, लाइक दैट. तो इसका मतलब होता है क्वांटा. नाउ ये हम लोग यहां पे क्वांटम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? एटम के लिए क्यों क्वांटा यूज कर रहे हैं? बिकॉज एटम में एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. एनर्जी आइदर 1 फोटोन का मिलेगा या 2 फोटोन का मिलेगा या 3 फोटोन का मिलेगा. एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास एक रेड फोटोन है, तो पूरा एक रेड फोटोन मिलेगा, आधा फोटोन नहीं मिलेगा. हम लोग के पास ब्लू फोटोन है, तो पूरा एक ब्लू फोटोन मिलेगा, आधा या 1/4 फोटोन नहीं मिलेगा. तो आइदर यू कैन हैव एनर्जी ऑफ 1 रेड फोटोन और 1 ब्लू फोटोन और 2 blue photons or 2 red photons, like that. We cannot have 0.5 photons, 0.25 photons, 0.1 photons energy. So hence we have the name of this model as quantum wave mechanical. क्योंकि हम लोग देखा है electron can behave both as a wave as well as a particle. When we consider the particle nature of electron, in that case we consider the quantization of energy, quantas, packets of energy. And when we consider the wave nature of electron, we will consider the wave properties of the electron, like wavelength and frequency and that kind of properties. But leave that apart. Let us begin with the Schrodinger's wave equation. ये हम लोग का Schrodinger's wave equation. When we consider electron as a wave, we call it Schrodinger's wave equation. तो इलेक्ट्रॉन एज वेव इज Schrodinger's वेव इक्वेशन. उसका फॉर्मूला है del square psi upon del x square plus 2m upon h square bracket e minus u into psi is equal to 0. ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं psi, psi. इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? psi, psi. बट दिस इज अ ग्रीक लेटर. ये psi हम लोग का ग्रीक लेटर है. दिस ग्रीक लेटर psi denotes what? It denotes the wave function of the electron. This Greek letter psi denotes the wave function of the electron. और ये wave function distance के साथ वेरी होता है. R is distance और time t के साथ वेरी होता है. The wave function varies with distance as well as time. The wave function of the electron is denoted by symbol psi, psi, जहां पे p साइलेंट है. तो इसको मैं क्या बोलूंगा? psi. It denotes the wave function of the electron. This is the wave function of the electron. This psi is also the wave function of the electron. देखो अब wave function of electron क्या है, ये इक्वेशन कैसे आया, इसकी इक्वेशन में मीनिंग ऑफ टर्म्स क्या है, ये सब हम लोग के सिलेबस में नहीं है. बट लेट मी जस्ट गिव यू सम बेसिक आइडिया. ये psi क्या है? वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज दिस x? डिस्टेंस. व्हाट इज h? Planck's constant. What is m? Mass of electron. What is capital E? Energy of electron. What is capital U? Potential energy of electron. And psi, as I said, is wave function of electron. तो ये इक्वेशन हम लोग को डायरेक्टली याद रखना है. अब देखो किसी भी इक्वेशन, जैसे एग्जांपल के लिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रहेगा? सॉल्यूशन रहेगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा. तो वैसे ही ये वेव फंक्शन है, इसका भी हमारे पास क्या रहेगा? सॉल्यूशन. We will have solutions of this wave function. इस wave function का हम लोग के पास क्या रहेगा? Solutions. And the solutions of this above wave equation, ये Schrodinger wave equation का जो solution है, उसको हम लोग नाम देते हैं quantum numbers. The solution of this wave equation are known as quantum numbers. So we need to remember these things when we consider the wave nature of electron.
इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग वेव मानेंगे तो उस केस में वी हैव द इक्वेशन ऑफ द वेव ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वो इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? दैट इक्वेशन इज स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन which involves this new term psi, psi. This psi term, psi term means what? This psi term gives the wave function of the electron. Psi is the wave function of the electron. मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे हो सकता है? जैसे वेव कई जगह पे एक साथ हो सकता है. Wave can be here as well as there. The probability of finding wave in one region is more and probability of finding wave in another region is less. जैसे crest है तो वेव का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का ये कैसा पॉसिबिलिटी है? ज्यादा. मीन पोजीशन है तो वेव को फाइंड करने का पॉसिबिलिटी कैसा है? कम. मोर द एम्पलीट्यूड मोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वेव. लेस द एम्पलीट्यूड लेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वेव. तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को जब वेव मानेंगे तो जहां पे हमारे पास एग्जांपल के लिए क्रेस्ट होगा या हाई एम्पलीट्यूड होगा तो एट दैट टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी हायर. और जहां पे हम लोग के पास मीन पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रहेगा जो वेव फंक्शन है वो वैल्यू कम रहेगा तो एट दैट टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी लेस. सो दिस फंक्शन psi गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. व्हेन द वैल्यू ऑफ psi इज हाई द रीजन्स विल हैव more probability of finding the electron. The regions in which value of psi is less will have less probability of finding the electron. तो ऐसा ही हम लोग का वेव फंक्शन है. बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस इज दिस क्वांटम नंबर्स. इस वेव मैकेनिकल मॉडल को क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन एंड दो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विल गिव अस द quantum numbers, and these quantum numbers are used to give us the location of the electron, the energy of the electron, the spin of the electron. हम लोग क्या मिलेगा क्वांटम नंबर से? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा. लोकेशन जैसे एड्रेस बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का. वी कैन गेट द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पे रखा हुआ है. एनर्जी वी कैन गेट द आइडिया ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सीइंग दिस क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर कम है तो एनर्जी कम है, क्वांटम नंबर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है. एंड स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हम लोग के पास एक स्पिन क्वांटम नंबर होगा, उससे क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड. सो दिस इज अबाउट द क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स आर यूज्ड टू गिव अस द लोकेशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब देखो, अगर मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट इज योर लोकेशन, व्हाट इज योर एड्रेस, तो व्हाट आर थिंग्स विल यू से? क्या क्या हम लोग को एड्रेस के लिए जरूरी है? एड्रेस के लिए हम लोग को जरूरी है सिटी. कौन सा सिटी है? पहले तो सिटी पता रहना चाहिए, और सेकंड उसके बाद हम लोग को पता रहना चाहिए कौन सा रोड है, किस रोड में तुम रहते हो. फिर उसके बाद हम लोग को बिल्डिंग का नाम पता रहना चाहिए, बिल्डिंग नेम ऑफ द बिल्डिंग पता रहना चाहिए, और फाइनली रूम नंबर पता रहना चाहिए. वी शुड हैव द room number. So by these four things will I be able to get your address completely? Yes. तो हम लोग अगर चार चीज पता चल गया, क्या? सिटी का नाम, रोड का नाम और बिल्डिंग का नाम एंड फाइनली रूम नंबर. ये चार चीजों से वी कैन इजीली लोकेट एनीवन. ये चार चीज पता रहेगा तो हम लोग किसी को भी लोकेट कर सकते हैं. तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम में कहां है वो फाइंड करने के लिए हम लोग को चार चीजें लगती है. So those four things are known as quantum numbers. The four things needed to find the address of the electron are called as quantum numbers. तो हमारे पास चार क्वांटम नंबर है. जैसे हमारे पास चार चीजें हैं, सिटी नेम, रोड नेम, बिल्डिंग नेम और फाइनली रूम नंबर. ये चार अगर चीजें पता रहेंगी तो हम लोग तुम्हारा एड्रेस लिख सकते हैं या मेरा एड्रेस लिख सकते हैं. सिटी नेम, रोड नेम, बिल्डिंग नेम, रूम नंबर, फोर थिंग्स. तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए वी नीड फोर क्वांटम नंबर्स. तो फोर क्वांटम नंबर्स कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. पहला क्वांटम नंबर कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. सेकेंड क्वांटम नंबर कौन सा है? l. See this, first quantum number is principal quantum number n. Second quantum number is azimuthal, दूसरा नाम इसका subsidiary, तीसरा नाम orbital, angular quantum number. तो इसका सिंबल है L. Then third quantum number which we have is
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका सिंबल है m। एंड फाइनल क्वांटम नंबर, फाइनल जो हम लोग के पास रहेगा, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। फाइनल क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल क्या है, s। तो लेट अस अगेन रिवाइज दिस 4 क्वांटम नंबर्स। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l azimuthal क्वांटम नंबर, इसका एक नाम है जो ज्यादा फेमस है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। तो 3 नेम्स वी हैव टू रिमेंबर, azimuthal quantum number, subsidiary quantum number, orbital quantum number. So these 3 names mean one and the same thing. M is magnetic quantum number, m is magnetic quantum number, and finally s is spin quantum number. ये क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है इलेक्ट्रॉन या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है, वो हम लोग को पता लगेगा। जैसे सोचो हम लोग को हमारा एड्रेस फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, सिटी, तो पहला क्वांटम नंबर क्या हुआ हमारे लिए, सिटी। दूसरा क्वांटम नंबर हमारे लिए क्या हुआ, रोड का नाम। तीसरा क्वांटम नंबर हमारे लिए क्या हुआ, बिल्डिंग नेम। फोर्थ क्वांटम नंबर हमारे लिए क्या हुआ, रूम नंबर। तो ये 4 चीजें पता लगेंगे तो हम लोग का एड्रेस फाइंड हो जाएगा। तो दैट इज हाउ वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये चारों क्वांटम नंबर को अब हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके। सो फर्स्ट क्वांटम नंबर एज आई सेड इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल है n। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द सिंबल ऑफ इट इज n। अब n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो n का वैल्यू होगा 1 2 3 4। ये n का जो वैल्यू है दैट इज द ऑर्बिट नंबर। जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं तो बीच में क्या रहता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस, और आजू बाजू भी है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट होता है हमारे पास, सेकंड ऑर्बिट होता है, थर्ड ऑर्बिट होता है और फोर्थ ऑर्बिट होता है। हमारे पास कितने ऑर्बिट्स हैं, 4। तो फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 बोलेंगे, सेकंड ऑर्बिट को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 बोलेंगे, थर्ड ऑर्बिट को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 बोलेंगे, और फोर्थ ऑर्बिट को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 बोलेंगे। द फर्स्ट ऑर्बिट वी ऑल्सो कॉल बाय अनदर नेम, के शेल। क्या नाम देते हैं इसको, के शेल। सेकंड क्वांटम नंबर या सेकंड नंबर, सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n(2), इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल शेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 3 वी कॉल एज m शेल। एंड फाइनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, इसको हम लोग बोलते हैं n शेल। तो वी हैव 4 शेल्स, k l m n। तो ये हम लोग का यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, व्हाट डज दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डिनोट, इट डिनोट्स द शेल नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या दिखाता है, शेल नंबर, एंड इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, कम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन कैसा है, और ज्यादा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन कैसा है, मोर, इवन मोर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, even more distance from the nucleus. More the value of principal quantum number, more is the shell number, and more will be the distance from the nucleus. The first orbit number or principal quantum number we call as K shell. Second principal quantum number 2 we call as L shell. The third principal quantum number 3 we call as M shell. And finally, the fourth principal quantum number we call as N shell. तो हमारे पास 4 shells है, n is equal to k l m n, and as I told you, this gives us the idea of distance from the nucleus. Also, it gives us an idea of energy of the electron. देखो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी कैसा है, कम। सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी कैसा है, ज्यादा। थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है तो और भी ज्यादा। फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है तो बहुत ज्यादा। ये कैसे आया हम लोग को, बिकॉज एनर्जी वॉज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। ये इक्वेशन हम लोग को याद है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मोर द वैल्यू ऑफ एन, मोर द वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो ऐसा एक्सप्रेशन को हम लोग समझा। तो दिस गिव्स अस आइडिया ऑफ व्हाट, इट गिव्स द आइडिया ऑफ एनर्जी। एक तो हम लोग को किसका आइडिया देता है ये, एनर्जी। सेकेंड ये आइडिया देता है डिस्टेंस या रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन का आइडिया देता है। अगर रेडियस कम है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, और अदरवाइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है
तो रेडियस भी ज्यादा है। तो दीज आर द टू थिंग्स, उसका हम लोग को आइडिया इससे मिलेगा। एंड मोर ओवर, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो यू नो दिस वेरी वेल। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम वी कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में वी कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आइडिया हम लोग को कैसे आएगा, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस फॉर्मूला 2n²। 2n² फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n²। n को रखो 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो 2 into 1² which is 2, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। n को रखो 2, तो 2² कितना है 4, तो 4 into 2 8, तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो कैसे आएंगे, 2 into 2², ये कैसे आया 2 into 3², ये कैसे आया 2 into 4²। 4² कितना होता है 16, तो कितना आ गया 32। तो फर्स्ट शेल में 2 into 1² 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 2 into 2² 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 2 into 3² 18 इलेक्ट्रॉन, 2 into 4² फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ये सबको समझ में आया होपफुली। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज क्या है, इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ शेल नंबर। हम लोग को क्या मिलेगा, शेल नंबर मिलेगा। फर्स्ट शेल को हम लोग बोलेंगे k शेल, सेकेंड शेल को हम लोग बोलेंगे l शेल, थर्ड शेल को हम लोग बोलेंगे m शेल, फोर्थ शेल को हम लोग बोलेंगे n शेल। तो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इट गिव्स अस द शेल। नाउ सेकेंड क्वांटम नंबर हम लोग के पास कौन सा है, सेकेंड क्वांटम नंबर L, विच इज azimuthal क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो ये क्या है, दिस गिव्स अस द सब शेल। ये हम लोग को क्या देगा, शेल के अंदर का सब शेल, इट गिव्स द सब शेल। इसका वैल्यू कहां से, इसका वैल्यू है 0 to n-1। द L का वैल्यू कहां से कहां होता है, 0 से n-1, ये याद रखो 0 से n-1। अब अगर मैंने n का वैल्यू 4 लिया, इफ n का वैल्यू मैंने क्या लिया 4, n का वैल्यू लिया मैंने 4, तो 0 L का वैल्यू कहां से होगा 0 to 4-1, 0 to 4-1, 4-1 कितना आता है 3, तो L का वैल्यू आएगा 0 to 3। अब 0 to 3 नंबर्स बोल के बताओ मेरे को 0 से 3 तक, तो 0 1 2 3 ऐसा 4 नंबर आएगा कि नहीं हमारे पास, तो 0 1 2 3 4 नंबर्स आया। फर्स्ट नंबर जैसे हम लोग का 1 यहां पे K शेल था, 2 यहां पे L शेल था, 3 यहां पे M शेल था, और 4 यहां पे N शेल था, वैसे ही 0 हमारा S ऑर्बिटल, दिस इज S सब शेल। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, सब शेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, S सब शेल, S सब शेल। 1 L इज इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे, P सब शेल। L इज इक्वल टू 2 को क्या बोलेंगे, D सब शेल, और L इज इक्वल टू 3 को क्या बोलेंगे, F सब शेल। तो ये ऐसे याद रखो, L इज इक्वल टू 0 S सब शेल, L इज इक्वल टू 1 P सब शेल, L इज इक्वल टू 2 D सब शेल, और L इज इक्वल टू 3 F सब शेल। ऐसे याद रखना है हम लोग। देखो N इज इक्वल टू 1 K शेल, N इज इक्वल टू 2 L शेल, N इज इक्वल टू 3 M शेल, N इज इक्वल टू 4 N शेल। तो K L M N 4 शेल्स हैं कि नहीं हमारे पास, करस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4। वैसे ही करस्पॉन्डिंग टू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये देखो सेकंड L क्या है हमारे पास, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। करस्पॉन्डिंग टू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 वी हैव S सब शेल, S क्या सब शेल। करस्पॉन्डिंग टू azimuthal quantum number 1 we have P subshell. Corresponding to azimuthal quantum number 2 we have D subshell, and corresponding to azimuthal quantum number 3 we have F subshell. अब देखो एक और बात याद रखना है, क्या S subshell एक ही होता है। How many S subshells? 1 S subshell, तो एक ही होता है। अब ये L is equal to 0 का वैल्यू नहीं है, ये नंबर ऑफ सबशेल्स है। ये क्या है, नंबर ऑफ सबशेल्स। नंबर ऑफ सबशेल्स को मैं किस कलर में लिख रहा है, रेड कलर में। हाउ मेनी सबशेल्स,
तो s का कितना सबशेल है? एक सबशेल। p का कितना सबशेल है? 3 सबशेल। और d का कितना सबशेल है? 5 सबशेल। f का कितना सबशेल है? 7 सबशेल। ऑड नंबर 1 3 5 7। s का कितना सबशेल है? लेट मी शो यू अगेन। s का कितना सबशेल है? 1। p का कितना सबशेल है? 3। d का कितना सबशेल है? 5। और f का कितना सबशेल है? 7। तो रिमेंबर दिस वैल्यूज। वी हैव s p d f. हाउ मेनी s subshells? 1. How many p subshells? 3. How many d subshells? 5. How many f subshells? 7. हम लोग बोल सकते हैं s में एक ही ऑर्बिटल है हमारे पास, p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है, और d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स है, और f में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 7। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग को मिल गया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, वी कैन से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हाउ मेनी s ऑर्बिटल्स? 1. हाउ मेनी p ऑर्बिटल्स? 3. हाउ मेनी d ऑर्बिटल्स? 5. हाउ मेनी f ऑर्बिटल्स? 7। अब ये देखो ऑर्बिटल्स क्या है, तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल्स क्या है तो हम लोग का नेक्स्ट क्वांटम नंबर से आएगा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, उससे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का आइडिया आएगा। बट फॉर नाउ रिमेंबर, s सबशेल में कितना ऑर्बिटल्स है? 1। p सबशेल में कितना ऑर्बिटल्स है? 3। d सबशेल में कितना ऑर्बिटल्स है? 5। और f सबशेल में कितना ऑर्बिटल्स है? 7। इजी है याद करने के लिए, ऑड नंबर से याद करो, 1 3 5 7। तो दिस इज व्हाट इज देयर इन अवर सिलेबस, s p d f। अब f के बाद और भी होता है, g होता है, h होता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिवाइज यू। रिवाइज क्या क्या किया हम लोग ने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n, इट गिव्स द आइडिया ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स द आइडिया ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मोर द ऑर्बिट, more the radius, more the energy. And n is equal to 1 k shells, n is equal to 2 m shell, n is equal to 3 m shell, n is equal to 4 n shell. Then we have azimuthal quantum number L, it gives the idea of subshell. Its value ranges from 0 to n minus 1. If we take the value of n as 4, then L ranges from 0 to 4 minus 1, matlab 0 to 3. So what are the numbers or integers from 0 to 3? 0 1 2 3। तो l is equal to 0 1 2 3। अब l is equal to 0 कौन सा सबशेल है? इट गिव्स s सबशेल। l is equal to 1 कौन सा सबशेल है? p सबशेल। l is equal to 2 d सबशेल। l is equal to 3 f सबशेल। एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स है, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स है, और f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स। तो दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट, ये याद कर लेना। इसका यूज हम लोग करेंगे, इसको कैसे अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन को, वो सब देखेंगे। बट फॉर नाउ रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन वेरी वेल। देन वी हैव नेक्स्ट क्वांटम नंबर विच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा? m। m क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ एनर्जी। m हम लोग को क्या देगा? सॉरी, इट गिव्स द आइडिया ऑफ ऑर्बिटल्स, इट गिव्स द आइडिया ऑफ ऑर्बिटल्स। तो m हम लोग को क्या देगा? ऑर्बिटल्स। m विल गिव अस द ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स कौन सा है तो वो हम लोग देखते हैं। और इस m का वैल्यू कहां से कहां होगा? तो m का वैल्यू होगा -l थ्रू 0 टू +l, -l थ्रू 0 टू +l, ऐसा है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है हम लोग देखते हैं। तो मैंने l का वैल्यू लिया, l का मिनिमम वैल्यू क्या आया था? 0। देखो पहले m का वैल्यू याद रखने का, m का वैल्यू कहां से कहां तक है? -l से 0 से लेके +l तक, यही मैंने यहां पे लिखा है। m denotes orbital orientation of electron in the subshell and its value यहां पे लिखा नहीं है, बट वैल्यू its value as I told you, ये यहां पे लिखा है। m का वैल्यू कहां से कहां है? -l थ्रू 0 टू +l, ऐसा हम लोग को याद रखना। तो यही मैंने यहां पे लिखा, -l थ्रू 0 टू +l। तो लेट अस केस 1 हम लोग कौन सा लेंगे? केस 1 इज l इज 0, क्योंकि l का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो m का वैल्यू क्या आएगा? m का वैल्यू आएगा -0 टू 0। अब 0 को नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन होता है क्या? नहीं। तो इसीलिए l 0 है, देन m का वैल्यू कितना होगा? 0 ही होगा। और m का वैल्यू 0 मतलब कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल।
और एक ही एस ऑर्बिटल है। कितना एस ऑर्बिटल है? एक ही एस ऑर्बिटल। देखो एम का एक ही वैल्यू आया कि नहीं हमारे पास? कितना वैल्यू आया? एम का एक ही वैल्यू आया, और वो कौन से ऑर्बिटल के लिए है? एस ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल कितना है? एक ही है। तो इसीलिए हम लोग के पास m इज इक्वल टू 0 कौन सा आएगा? एक ही s ऑर्बिटल, ओनली वन s ऑर्बिटल। नाउ लेट अस टेक केस 2। केस 2 में l का वैल्यू कितना है? देखो l का वैल्यू पहले 0 था, वो तो मैंने बोल दिया, s ऑर्बिटल है। और कितना है वो? एक ही है, वो तो प्रूव किया इधर हम लोग ने, एक ही s ऑर्बिटल। अब सेकंड केस लेते हैं। l का वैल्यू कितना है? 1। l का वैल्यू कितना लिया मैंने? 1। केस 2 में l का वैल्यू लिया 1। तो 1, तो m का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा? तो l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, तो m का वैल्यू कहां से कहां आएगा? m का वैल्यू आएगा -1 थ्रू 0 टू +1, क्योंकि m का वैल्यू कहां से कहां होता है? -l से +l, -1 से +1, -1 से +1 इंटीजर्स बोलो, -1 से +1 इंटीजर्स, -1 0 +1, तो 3 इंटीजर है कि नहीं हमारे पास? तो देखो l इज इक्वल टू 1 कौन सा ऑर्बिटल था? देखो l इज इक्वल टू 1 कौन सा ऑर्बिटल था? p ऑर्बिटल। तो l इज इक्वल टू 1 मतलब p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल मैंने तुम्हें बताया था कितना p ऑर्बिटल है? तो p ऑर्बिटल है हमारे पास 3। p ऑर्बिटल कितना है? 3। तो क्या 3 आ रहा है? यस, देखो यहाँ पे 3 कैसे आया? m का वैल्यू पहला, दूसरा, तीसरा, 3 वैल्यूज है कि नहीं? तो 3 वैल्यू तीनों p ऑर्बिटल्स के लिए। कौन सा p ऑर्बिटल? px। पहला p ऑर्बिटल कौन सा है? px। दूसरा p ऑर्बिटल कौन सा है? py। और तीसरा p ऑर्बिटल कौन सा है? pz। तो हम लोग के पास 3 p ऑर्बिटल्स है, px, py, pz। px, अब देखो s ऑर्बिटल का शेप हम लोग ने डिस्कस नहीं किया, बट s ऑर्बिटल का शेप होता है स्पेरिकल। s ऑर्बिटल का कैसा शेप है? स्पेरिकल। p ऑर्बिटल का शेप कैसा है? डम्बेल जैसा। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? डम्बेल। तो अगर मैं शेप बनाऊं तो p ऑर्बिटल का डम्बेल जैसा शेप कैसा बनेगा? देखो ये डम्बेल px, x के अलाउंग डम्बेल बनेगा, और py, तो py y के अलाउंग डम्बेल बनेगा, और pz z एक्सिस के अलाउंग डम्बेल बनेगा, z एक्सिस के अलाउंग डम्बेल। तो कौन सा शेप है ये? दिस इज डम्बेल शेप। कौन सा शेप है? डम्बेल शेप। ये हम लोग रिवाइज करेंगे, हम लोग लिखेंगे भी वापस, बट फॉर नाउ रिमेंबर दिस। देखो l इज इक्वल टू 1 कौन सा ऑर्बिटल था? p ऑर्बिटल। देखो यहां पे दिखाया मैंने, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1 p ऑर्बिटल। एंड हाउ मेनी p ऑर्बिटल्स? 3। कैसे 3 आया? तो इधर देखो l इज इक्वल टू 1, m का वैल्यू निकाला मैंने, m का वैल्यू -l से +l तक, मतलब -1 से +1 तक, -1 से 1 इंटीजर्स बोलो, -1 0 +1, तो 3 इंटीजर्स है, मतलब 3 p ऑर्बिटल है। कौन सा 3 p ऑर्बिटल है? px, py, pz। और इनका शेप कैसा है? डम्बेल जैसा। एक x एक्सिस के अलाउंग डम्बेल, py y एक्सिस के अलाउंग डम्बेल, pz z एक्सिस के अलाउंग डम्बेल। तो ऐसा हम लोग का ये केस है। अब उसके बाद केस 3 लेते हैं, केस 3। तो केस 3 क्या होगा? तो केस 3 विल बी l का वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू क्या है? देखो l का वैल्यू 0 हमने कंसीडर किया, 1 भी हमने कंसीडर किया। अब केस 3 में हम लोग वैल्यू कंसीडर करेंगे l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर m का वैल्यू कहां से आएगा? -2 टू +2, -2 से +2 बोलते जाओ मुझे नंबर्स, इंटीजर्स क्या है? -2, -1, 0, +1, +2, 5 इंटीजर्स आएगा कि नहीं? और वही हमारे पास हुआ। देखो l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 कौन सा है? d ऑर्बिटल। l इज इक्वल टू 2 कौन सा है? d ऑर्बिटल। और d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 है कि नहीं हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज आ गया। और पहले वैल्यू को हम लोग बोल देंगे dxy, दूसरे वैल्यू को हम लोग बोल देंगे dyz, तीसरे वैल्यू को हम लोग बोल देंगे dzx, और चौथे वैल्यू को हम लोग बोलेंगे dx² माइनस y², एंड फाइनली पांचवी वैल्यू को बोलेंगे dz²। तो 5 वैल्यू, 5 d ऑर्बिटल्स आ गया कि नहीं हमारे पास? 1 2 3 4 5। इसका शेप कैसा होता है? तो इसका शेप डबल डम्बेल होता है। इसका शेप कैसा होता है? डबल डम्बेल। तो ये हम लोग देखेंगे, बट आई विल राइट इट डाउन राइट नाउ। ये शेप वेप का बाद में हम लोग देखेंगे, दैट वंस विल सी द शेप ऑफ द d ऑर्बिटल्स। सो व्हाट आर द शेप? डबल डम्बेल, डबल डम्बेल शेप। और देखो ये शेप अगर बनाने का तो मैं यहां पे बना सकता है। तो इट शेप इज लाइक दिस, ये देखो dz², dz² का शेप ऐसा है, z एक्सिस के अलाउंग,
और ऐसा। तो ये कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप कैसे आएगा, तो हम लोग के पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक डंबल कहां होगा, अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा डंबल कहां होगा, अलोंग वाई एक्सिस। तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप, एक डंबल एक्स एक्सिस के अलोंग, एक डंबल वाई एक्सिस के अलोंग, और दो डबल डंबल है, डी एक्स वाई का शेप कैसा आएगा, तो मैंने क्या बनाया, एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया। तो डी एक्स वाई का शेप बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस एक डंबल रखा, और फिर से यहां पे और एक डंबल रख दिया, एक डंबल एक्स वाई प्लेन में दोनों डंबल्स हैं, दोनों डंबल्स की प्लेन के अबाउट बना हुआ है। तो दिस इज 3D, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्लेन में रहेगा, प्लेन के बाहर भी रहेगा। डंबल इज अ 3D फिगर। तो ये एक्स वाई प्लेन उसका एक तरह से हम लोग सेंट्रल प्लेन मान सकते हैं, उस प्लेन के थोड़ा बाहर होगा, थोड़ा अंदर होगा, वो देखेंगे हम लोग शेप 3D में थोड़ा बाद में। बट दिस इज डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड कैसा होगा, मैंने वाई एक्सिस बनाया, जेड एक्सिस बनाया, तो उसका भी शेप वाई और जेड एक्सिस के बीच में ऐसा दो डंबल। डी जेड एक्स कैसा होगा, तो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में दो डंबल। तो दिस शेप विल मेक वंस अगेन, बट हियर वी हैव एवरीवेयर टू डंबल्स, एक डंबल इधर, एक डंबल इधर। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में दोनों डंबल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक रहेगा, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा। डी जेड स्क्वायर में एक डंबल जेड एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा, और बीच में आजू बाजू यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये सब क्या डंबल वंबल बनाए, ये सब है क्या, इज दिस डंबल the shape of the electron? No, it is the probability of finding the electron. It is the probability of finding the electron. अगर मैं ऐसा शेप बनाऊं, देखो ये ऐसा शेप बनाऊं, तो ये हम लोग का पी वाई एक्सिस हो गया, कौन सा है ये, पी वाई ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल। तो व्हाट वी कैन से इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन इज हाईएस्ट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन इज जीरो। देखो यहाँ पे वेव का वैल्यू जीरो है ऑलमोस्ट, यहाँ पे वेव का वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी जीरो है, यहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, अगेन यहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। यहां पे इलेक्ट्रॉन इस रीजन में ज्यादा से ज्यादा मिलने का चांस है, क्योंकि यहां पे वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और इस रीजन में एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट जीरो है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो है। ये इलेक्ट्रॉन का शेप नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। wherever we have high region or high amplitude region, the probability of finding the electron is higher. Wherever we have low amplitude region, the probability of finding the electron is less. इसको हम लोग नोड बोलते हैं, फिजिक्स में इसको बोलते हैं नोड। नोड मीन्स व्हाट, ऑलमोस्ट जीरो एम्पलीट्यूड। तो जीरो एम्पलीट्यूड में वी कैनॉट फाइंड द इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अगर हम लोग डबल डंबल शेप बनाया डी ऑर्बिटल के हिसाब से, मान लो मैंने ऐसा दो डंबल बना दिया, तो व्हाट इज दिस शोइंग कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे